Hello, hi, good morning, and welcome to biology class. So, in our previous class, what we have completed? We have completed about plant tissue. Okay, so today we will study about animal tissue. So, what is animal tissue? The tissue which are present in the animal, those tissues are called as animal tissues. Okay, clear? One question comes to your mind, that is animal made of single type of tissue or there are different types of tissue? No, animal is made of different types of tissue. So let's come to know which type of tissue are present inside the animal body. Okay, so there are four major types of tissues are present in the animal. Okay, so what are those are, first one is your epithelial tissue. Okay, so these tissue you can find on your skin. Okay, so this is called epithelial tissue. Mostly these tissues covering most organs and body cavities. So simply you can call that tissue as a covering tissue. Okay, next comes to the another type of tissue, that is connective tissue. Why it is connective tissue? Because it connects every part of the body. Okay, so that this tissue is named as connective tissue. In this tissue we will study about bone, blood, tendon, ligament, cartilage. All about those things will be discussed under this tissue. Okay, so next comes to muscular tissue. Muscular tissue is present in your muscles. Okay, so like vital organs, muscles like striated muscles, unstriated muscles, voluntary muscles, involuntary muscles, all those muscles will discussed under this muscular tissue. Okay, so you will know one by one. So next, fourth one is nervous tissue. Means this tissue is present in your brain or in your whole body as a neuron or nerve cell. Okay, so these four major types of tissue you will found in the animal body. Okay, so what are those four types of tissue? Epithelial tissue, second is connective tissue, third is muscular tissue, fourth is nervous tissue. Clear? Okay, so next comes to epithelial tissue. If we will see in detail epithelial tissue, we can say that this epithelial tissue is very simplest form of tissue and it is a very protective tissue. It covers most of the organs and body cavities. Okay, if we will see, is there any subdivision of epithelial tissue? Yes, there are four major types of epithelial tissues is there. Okay, so what are those subdivision of epithelial tissue? This epithelial tissue can be categorized as four types of tissue. Those are squamous epithelium, columnar epithelium, cuboidal epithelium, and last one is glandular epithelium. Okay, so again I am repeating: squamous epithelium, columnar epithelium, cuboidal epithelium, glandular epithelium. These four types of epithelial tissue are present in the epithelial tissue. Okay, so we will discuss one by one what is squamous epithelium tissue, what is columnar epithelium tissue, what is cuboidal epithelium tissue, what is glandular epithelium tissue. Clear? So comes to squamous epithelium tissue. Before going to squamous epithelium tissue, we will know about epithelial tissue. Okay, so simply I can say epithelial tissue is a simplest tissue. Epithelial tissue is a simplest tissue. An epithelial tissue is composed of one or more layers of cell covering and protecting the external surface and internal body organs. ये क्या बोल रहा है कि एक टिश्यू ऐसा है जो
एक लेयर ऑफ सेल से बने हैं और बहुत लेयर ऑफ सेल से भी बन सकते हैं, लेकिन सिंपल है तो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनेंगे। क्लियर। और इनका काम क्या है, ये जो लेयर ऑफ सेल रहेंगे किसी और एक्सटर्नल सरफेस नहीं तो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स का सरफेस को कवरिंग करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट कम्स टू लोकेशन। ये कहाँ कहाँ दिखने को मिलता है, ये जो एपिथेलियम टिश्यू है ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। दिस एपिथेलियम टिश्यू यू कैन फाइंड इन द कवरिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स एंड कैविटीज ऑफ होलो बॉडी ऑर्गन्स, ब्लड वेसल के अंदर की तरफ। सपोज मान लो ये आपका ब्लड वेसल है ना, और ये जो लुमेन है ना, ये जो बना होता है, ये आउटर कवरिंग और इनर कवरिंग, ये दिस इनर कवरिंग। ओके, सो दिस इनर कवरिंग इज मेड ऑफ व्हाट, मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ओके, so the skin, the lining of blood vessels, mouth, buccal cavity, pharynx, oesophagus, stomach, lungs, alveoli, ये जगह में आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। आपको पता चल रहा है ना, ब्लड वेसल के बारे में पता चला। माउथ, जो माउथ का पूरा अंदर की तरफ जो स्किन है वो पूरा एपिथेलियल टिश्यू से बना है। बुक्कल कैविटी मतलब माउथ का जो पूरा कैविटी है ना। फेरिंग्स, ये नेक के पास फेरिंग्स। ओइसोफेगस, तो फूड पाइप को ओइसोफेगस कहते हैं। स्टोमक तो आप पता है हमको स्टोमक क्या है। लॉन्ग्स के अंदर जो बैग लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या कहते हैं, अल्वियोली। सो इस सब जगह में एपिथेलियल टिश्यू मिलता है। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस लोकेशन। ओके, सो नेक्स्ट कम्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ओके, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू को देखेंगे अच्छे से तो हमको उनके सेल के बारे में भी पता चल जाएगा। सो द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर टाइटली पैक्ड विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। सो यू कैन से the intercellular space in between epithelial tissue is less or nothing. आप ऐसा बोल सकते हो, there is no intercellular space in between the cells of epithelial tissue. Okay, and they are tightly packed and form continuous sheet, मतलब एक continuously एक पर्दा बनाते जाते हैं। Clear? So cells are cemented together by small amount of viscous cementing substance formed of glycoprotein। ये जो सेल के ऊपर एक चिपक जाता है, सेल एक दूसरे से सेल पूरा चिपक जाते हैं, सीमेंटिंग हो जाते हैं, है ना। वो क्यों होते हैं, उनके बीच में एक प्रोटीन होता है, उसका नाम क्या है, सीमेंटिंग सब्सटेंस, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर। नेक्स्ट कम्स टू सेल्स ऑफ द लोअर मोस्ट लेयर रेस्ट ऑन नॉन सेलुलर जेलाटिनस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो सेल रहता है, यहाँ आपको फिगर दिखा देता हूँ, ये अगर सपोज एक टिश्यू है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर। ये जो है ना नॉन सेलुलर, आपका जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसी के ऊपर क्या रहता है, सारे सेल्स रहता है ऐसे। क्लियर। नेक्स्ट, so cells of lowermost layer rest on the non-cellular gelatinous basement membrane with collagen fiber। इसके बीच में कोलाजन फाइबर रहता है, वही सेपरेट करता है, कोलाजन फाइबर सेपरेट करता है, which separates it, किसको, बेसमेंट मेम्ब्रेन को और लेयर ऑफ सेल को, ठीक है, अलग करता है फ्रॉम द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। ये जो सेल है और बेसमेंट मेम्ब्रेन इसको अलग करता है कि बीच में कोलाजन फाइबर रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ईच एपिथेलियल टिश्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन से अलग होता है। क्लियर। नेक्स्ट, एपिथेलियल टिश्यू डज नॉट हैव ब्लड वेसल। इनके बीच में कोई ब्लड वेसल आपको दिखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मसल्स और बाकी जगह में आपको मिलेगा, लेकिन एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आपको ब्लड वेसल नहीं मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। आप इसके बारे में बात करेंगे कि अगर ये काम क्या करता है, तो आप इसको देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन, इट गिव्स प्रोटेक्शन। ओके, सो हाउ इट प्रोटेक्ट, एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग टिश्यूज फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी। अगर कोई तुम गिर जाओ तो पहले तुम्हारा स्किन है ना, तो वही आपका प्रोटेक्ट देगा बॉडी को,
बॉडी को प्रोटेक्ट वही स्किन देगा। नेक्स्ट एंट्री ऑफ जर्म्स, कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंट्री मारते हैं तो पहला बैरियर कौन बनेगा, स्किन, उसको पार करके नहीं जा पाएंगे इतने जल्दी आपके बॉडी के अंदर। और ड्राइंग ऑफ, सूखने नहीं देता है, हार्मफुल केमिकल्स जो लग जाता है वो आपके बॉडी के अंदर जा सकता था लेकिन स्किन उसको परमेबल उसको एंट्री करने नहीं देता है। तो इस तरह का प्रोटेक्शन दे सकता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट कम्स टू एब्जॉर्बेशन और एब्जॉर्प्शन। व्हाट इट एब्जॉर्ब्स, एब्जॉर्ब्स मीन्स क्या ये सॉक कर लेता है, व्हाट इट एब्जॉर्ब्स, एब्जॉर्प्शन मीन्स सॉकिंग। द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ इंटेस्टिनल और इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। आपको पता होगा, डाइजेशन पढ़े होंगे आप लोग, तो डाइजेशन में आपको पता है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, सपोज दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक ऐसा भीली होता है ना, तो ये जो भीली है फूड अगर ऐसे जाता है तो ये क्या करता है ना, एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है ये भीली, और उस भीली ने क्या किया है ना, उस सारे जो डाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सारे फूड डाइजेस्ट होते हैं, वहाँ क्या होता है असिमिलेशन या एब्जॉर्प्शन होता है। तो वहाँ से वो एपिथेलियल टिश्यू सारे डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, सक कर लेगा, और सक करके ब्लड के साथ मिला देगा, तो वही है इसका काम। नेक्स्ट कम्स टू एक्सक्रिएशन, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ यूनिफेरस ट्यूबुल्स दैट इज नेफ्रॉन। हाँ, नेफ्रॉन आप कहाँ मिलेगा, किडनी के अंदर मिलेगा, और इसके बारे में 10th में पढ़ोगे आप लोग, किडनी में नेफ्रॉन कैसे फंक्शन करता है। ओके, तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रिएशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, एक्सक्रिएशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो कैसे एक नेफ्रॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर निकल, कैसे नेफ्रॉन दिखता है पता है आपको, ऐसे ऐसे दिखेगा। तो ये जो है ऐसा आएगा, ये ब्लड वेसल ऐसे ऐसा आएगा और इसके ऊपर चढ़ के ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और यही जो ब्लड से जितना सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेस्ट ब्लड आएगा, इसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड, इसी से वो क्या कर नेफ्रॉन इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करके सारा क्या करेगा, सारे वेस्ट एक्सक्रिएट कर लेगा, क्या नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करके यहाँ यूरिनरी ब्लैडर को कलेक्ट करके दे देगा। क्लियर, किडनी से। तो ये आपको 10th में पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में, बस आप ध्यान दीजिए। एक्सक्रिएशन किसके द्वारा होता है ना, किडनी के द्वारा होता है। किडनी के अंदर कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। नेफ्रॉन एक सेल है किडनी के अंदर। जैसे आप बोलोगे कि बॉडी कैसे काम कर रहा है, मैं बोलूँगा सेल काम कर रहा है, तो अभी जाके बॉडी काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि सेल बहुत सारा सेल को लेके टिश्यू बना है, तो जब एक सेल काम करता है तभी एक टिश्यू ठीक से काम कर पाता है। हम बोलेंगे बहुत सारे टिश्यू को लेके एक ऑर्गन बना है, जब एक टिश्यू अच्छे से काम कर रहा है तब एक ऑर्गन सही से काम करेगा। फिर बहुत सारा ऑर्गन को लेके एक ऑर्गन सिस्टम होता है, जब एक ऑर्गन ठीक से काम करेगा तभी जाके एक ऑर्गन सिस्टम सही से काम करेगा। फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को लेके एक बॉडी बना है, और जब सारे सिस्टम एक साथ काम करेंगे तभी हमारा बॉडी एक्टिव होगा। So like that when respiration occur, lungs will be function, but inside the lungs who is the active, that is a alveoli cells are actually performing the function. So that the functional unit of respiration is what, alveoli cell. Like that in kidney, nephron cell function is the functional unit of excretion. Okay, so you have to remember these things. Next comes to secretion, आपके जो स्वेट सीक्रेट होता है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड से जो भी एंजाइम्स और एसिड सीक्रेट होते हैं वो सारे यही करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू सिक्रेशन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट कम टू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, कैसे वो एक्सचेंज करते हैं ना, जैसे एपिथेलियल रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना, जो आपका जो एक्सचेंजेस करते हैं, कभी कभी वाटर को ऑब्जर्व करता है, कभी सीक्रेट करता है, और जो गैसेस लंग्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। लंग्स सारे जो आउटर सरफेस क्या क्या एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड इनहेल्ड एयर, क्या जो भी तुम एयर अंदर लेते हो, इनहेल मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ओके। सो व्हेन गिव आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर्स इन बिटवीन ब्लड एंड एयर और एनवायरनमेंट,
that exchange can be done by epithelial tissue. Okay, it also act as barrier मतलब सिलेक्टिव बैरियर, किसी को एक साथ नहीं छोड़ने देता, किसी को जो जरूरत होगा उसको छान के सिलेक्टिव करके वो अंदर लेता है, बाकी को परमिशन नहीं देता है वो एंट्री मारे. Okay, so next comes to types of epithelial tissue. We will see types of epithelial tissue. There are four major types of epithelial tissues are here. Okay, so first one is squamous epithelium tissue, second one is columnar epithelium tissue, third one is cuboidal epithelium tissue, fourth one is glandular epithelium tissue. ओके, सो ये जो चार आपको टाइप्स मिले, ये कौन सा बेसिस में इसको डिवाइड किया गया है एपिथेलियम टिश्यू को? इट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपोनेंट सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. तो ये एपिथेलियल टिश्यू किस तरह का सेल से बना है, उनका शेप क्या है, साइज क्या है, और उनका स्ट्रक्चर को लेके बेसिस करके स्टेरियोटाइप में डिवाइड किया गया है. ठीक है, सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्क्वामस एपिथेलियम. क्या पढ़ेंगे? Squamous epithelium. So it is a flattened and scale-like polygonal cells closely fitted together like tiles in mosaic floor. आप देखे होंगे जैसे टाइल्स में टाइल लगा होता है, जैसे मोजाइक टाइल्स लगा होता है, वैसे ही दिखेगा आपको ये. और यह पूरा फ्लैट है और स्केल लाइक, जैसे आपको एक मछली के अंदर आपको स्केल दिखता है ना, लाइक दैट एक पॉलीगोनल सेल आपको दिखेगा. ओके, और ये कैसे दिखता है ये देखो, आपको ऐसे दिखेगा आपको बेटा, ये है ना. तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है. तो ऐसे करके पूरा कंटिन्यूसली बनाएगा. तो आप ऐसे देखेंगे तो ऐसे भी दिखेगा आपको. ठीक है, लेयर वाइज ये आपका सरफेस दिखेगा, तो ऐसे दिखेगा आपको सरफेस व्यू. स्किन से आप सरफेस से देखते हैं तो ऐसे दिखेगा आपको कंटिन्यूस. देखो, नो इंटरसेलुलर स्पेस इन बिटवीन सेल एंड सेल है क्या? इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, और ये टाइटली पैक्ड है. क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट कम्स टू लोकेशन, वेयर इट लोकेट. स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ मिलता है भाई? देखो, द स्क्वामस एपिथेलियम फॉर्म्स द लाइनिंग इन द ब्लड वेसल. आपको प्योरली याद रखना पड़ेगा कौन सा एपिथेलियम कहाँ मिलता है. ब्लड वेसल्स में मिलता है, इनर लाइनिंग में. आपका ओइसोफेगस फूड पाइप में मिलता है, इनर लाइनिंग में, सब इनर लाइनिंग में. माउथ में भी, नोज, स्किन, alveoli ऑफ लंग्स, इस सब जगह में स्क्वामस एपिथेलियम मिलेगा. और स्किन जो है वो मेड ऑफ क्या? स्क्वामस एपिथेलियम से होता है. ये ध्यान रहे आपका. नेक्स्ट फंक्शन, इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइनिंग बॉडी पार्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी, जर्म्स, ड्राइंग ऑफ इटीसी. ये आपको हेल्प करता है आपको किससे बचाने के लिए? मैकेनिकल इंजुरी से. जर्म्स मीन्स बैक्टीरिया वायरस एंट्री नहीं करने देगा, ये आपका बॉडी भी ड्राई अप नहीं होगा. ओके, सो नेक्स्ट इज ये हाँ, ये दो तरह का होता है स्क्वामस एपिथेलियम. एक है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, दूसरा होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. ओके, तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता है ना? जब पतले होते हैं, बहुत एक्सट्रीमली थिन एंड सिंगल लेयर ऑफ सिंपल फ्लैट सेल, then it is called squamous simple squamous epithelium. क्लियर? और ये कहाँ कहाँ मिलता है आपको ना? ब्लड वेसल, नोज, सिलोमिक कैविटी, ब्रोंक्यूल्स ऑफ alveoli in lungs, and where transportation of substances occurs through selective permeable membrane. बट ये तो सिंगल लेयर होगा तो सिंपल, अगर डबल लेयर हो गया मतलब बहुत सारा लेयर हो गया है ना, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड. दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड. क्लियर? ये देख लीजिए. It contains cells arranged in a pattern of layers to prevent any wear and tear. ये फटने और टूटने को प्रोटेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन ए पैटर्न ऑफ मेनी लेयर्स. हम बोले थे आपको वो था सिंगल लेयर, इसलिए सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम था. लेकिन अभी ये क्या हो गया? स्ट्रैटिफाइड, मतलब लेयर बाय लेयर है ना, बहुत सारा लेयर है. क्लियर? सो दैट दिस इज कॉल्ड मेनी लेयर, सो दैट स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. ओके, सो नेक्स्ट कम्स टू ये फिगर आप देख लीजिए. दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये पूरा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये जो सेल का लेयर है ना, आपको देखो ये सेल का लेयर मिल रहा है, ये आपको लेयर मिल रहा है.
तो ये जो मेनी लेयर्स हैं इसमें आपको अच्छे से गौर से देखेंगे, आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगा, और ये जो है कनेक्टिव टिश्यू है, ये पूरा ब्लड वेसल, इसके ऊपर जो ब्लू है ये है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद जो न्यूक्लियस सेल है, सेल का न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म दिखा है। तो ये जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम है आपको कहाँ मिलेगा ना, वो सारे वही जगह में मिलेगा जैसे स्किन एपिथेलियल सेल्स में ही मिलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट कम्स टू कॉलमनर, इनका शेप साइज क्या होगा ना, कॉलमनर लाइक होगा, पिलर लाइक होगा, टॉल पिलर लाइक होगा। तो कॉलमनर मीन्स पिलर लाइक, क्या, पिलर लाइक। क्लियर। आपको दिख रहा है पिलर पिलर, ये this is pillar like. Clear. And therefore as the name suggests it is from tall pillar like cylindrical cells। अब आप अच्छे से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये है आपका ब्लड वेसल और कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है इसका ब्लू कलर का बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर रहता है सेल लंबे लंबे। क्लियर। और सेल का न्यूक्लियस देखो मिडिल में है, क्लियर है ना, बेसल पार्ट में है, ऊपर नहीं है, ये सेल के नीचे है बेसल पार्ट में। क्लियर। नेक्स्ट, तो कॉलमनर एपिथेलियम ये आपको पिलर लाइक सेल दिखता है। नेक्स्ट कम्स टू लोकेशन, ये आपको कहाँ मिलेगा ना, ये आपको मिलेगा बेटा इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, फेरिंग्स, लारिंग्स, ओविडक्ट। ओविडक्ट कहाँ होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उनका जो ओविडक्ट होता है, ये 10th में पढ़ेंगे आपका ओविडक्ट कहाँ मिलता है। बस आप याद रखिए ये टिश्यू कहाँ कहाँ मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट कम्स टू इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। ठीक है, ये एपिथेलियल बैरियर में मूवमेंट करने में भी हेल्प करता है। और ये कहाँ मिलेगा आपको ना, स्टोमक में मिलेगा, वॉल ऑफ स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर आपको पता है लिवर के पास, सो इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड, आपको वहाँ पे भी मिलेगा। फंक्शन क्या होगा बेटा ना, फंक्शन यही है कि ये ऑब्जर्प्शन में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन ऑब्जर्प्शन। ओके। और कहाँ ऑब्जर्प्शन करने में हेल्प करता है, जो हम बताए थे डाइजेस्टेड होने के बाद जो फूड स्टोमक के अंदर रहता है वहाँ इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और सिक्रेशन क्या करेगा, म्यूकस थ्रू दी गॉबलेट सेल एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, वहाँ पे भी सीक्रेट भी करता है और ऑब्जर्वेशन भी करता है। क्लियर। ओके। और भी एक तरह का टाइप ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम होता है, उसको कहते हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, वहाँ सिलिया प्रेजेंट होता है। सो लाइक दिस, बस वहाँ पे सिलिया बस रहा। सिलिया इज द हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन द कॉलमनर सेल। ओके। और यहाँ आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, जैसे माइक्रोविली और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको कहाँ मिलेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब आपका जो टाकिया है ना, इस तरह का सेल से बना होता है। क्लियर, पता चलेगा अच्छे से। नेक्स्ट कम्स टू क्यूबोइडल एपिथेलियम, तो ये क्यूबोइडल मतलब क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। सो इट इज मेड ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल हाइट एंड इक्वल विड्थ, सबका हाइट एंड विड्थ इक्वल तभी ना इक्वल, उसको क्यूब कहेंगे। तो इन द सरफेस व्यू दे लुक पॉलीगोनल इन शेप, आपको सरफेस व्यू देखेंगे तो आपको लगेगा पॉलीगोनल। ठीक है। और इसका न्यूक्लियस क्या है, राउंड इन शेप एंड लाई इन द सेंटर ऑफ द सेल, ये सेंटर में रहते हैं। देखो ये पूरा सेंटर में सेल रहते हैं और ये पूरा लेंथ एंड विड्थ पूरा इक्वल है, इसलिए क्यूब शेप दिखते हैं। ये आपका पूरा ब्लड वेसल, उसके ऊपर एक ब्लू कलर का चादर बिछा हुआ है, उसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर में ये अरेंज हुआ है कौन, सेल। क्लियर। ओके। तो यहाँ कहाँ दिखता है ये क्यूबोइडल एपिथेलियम में, आपको डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। ओके। और कहाँ मिलते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबुल्स, जो यूरेटर होते हैं वहाँ मिलते हैं आपको क्यूबोइडल एपिथेलियम। ओके। फंक्शन क्या है, और स्वेट ग्लैंड में मिलते हैं, थायराइड ग्लैंड्स में मिलते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन में आपको मिलेगा, ओवरीज आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन में मिलेगा। ओवरीज कहाँ मिलेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में मिलेगा। क्लियर। इसका फंक्शन देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रिएशन एज वेल एज सिक्रेशन अदर देन प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट छोड़ के यह आपको सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एक्सक्रिएशन में भी हेल्प करता है। कौन,
कौन, क्यूबोइडल एपिथेलियम। ओके, तो नेक्स्ट कम्स टू ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बहुत सिंपल है, दिस एपिथेलियम स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म ग्लैंड्स एंड ग्लैंड्स डेवलप फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू। याद रखिए, बहुत सारे ग्लैंड्स के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। So which can secrete substances at the epithelial surface. Sometimes there is the inward folding of epithelial tissue forming multicellular gland called glandular epithelium. वो जो मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू है वो फोल्डिंग्स हो जाता है ऐसे, और वो क्या बनाता है, ग्लैंडुलर सेल्स और ग्लैंड बना लेते हैं। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको बेटा, लोकेशन कहाँ है, गोबलेट सेल इन द म्यूकस मेम्ब्रेन। सपोज दिस इज द मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन क्या हो गया है, ये इनफोल्डिंग हो गया। तो ये जो इनफोल्डिंग हुआ ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बनाया, तो इसी को कहते हैं गोबलेट सेल। क्या कहते हैं, गोबलेट सेल। इसी के अंदर वो सीक्रेट करके म्यूकस लगता है। क्लियर। और वो क्या करेगा ना, और कहाँ मिलेगा आपको ना, एलिमेंट्री कैनाल में मिलेगा। मतलब व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, द कैनाल व्हिच एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू अनस, द टोटल कैनाल इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। और स्वेट ग्लैंड में आपको मिलेगा, सेबासियस ग्लैंड में मिलेगा, इन द स्किन, मामारी ग्लैंड में भी मिलेगा, सालिवरी ग्लैंड इन द माउथ में भी मिलेगा। फंक्शन क्या है बेटा ना, ये आपको सीक्रेट करने में हेल्प करता है बहुत सारे स्पेसिफिक सब्सटेंसेस। ठीक है, लाइक हार्मोन्स, स्वेट, सलाइवा, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सारे सीक्रेट होते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम से। इसका अगर हम फिगर देखेंगे तो हमको ऐसे दिखेगा, ये है स्ट्रक्चर अच्छे से देखो, ये कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल, ये उसके ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन बैठा है पूरा, और उसके ऊपर ये देखो कॉलमुनर सेल से बना होते हैं पूरा, और उनके बीच में गोबलेट सेल है। देखो ये जो गोल्डन कलर का गोबलेट सेल, मतलब ये सीक्रेट करते रहते हैं। क्लियर। और इनका माइक्रोविले रहता है ऐसे ऐसे एक्सटेंशन सरफेस, और वो एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन में भी हेल्प करते हैं। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। हम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट, एंड आप इसको एक नोट्स बनाइए आपकी कॉपी में, तो आपको इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड। ओके, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।